Hello, class 6th. Today we are going to study lesson 13 of your English grammar portion. So the name of our chapter is sentence, phrase and clause. Now in this chapter we will read about the sentence, phrase and clause. First of all, today we are going to study about sentence, that what are the sentences, कि sentences क्या होते हैं. Now let's see. First of all, I would like to tell you that what are the sentences. What are sentences? A group of words arranged in a certain order to make a complete sense is called a sentence. Words का ग्रुप जो कि एक प्रॉपर वे में अरेंज होता है, एक प्रॉपर वे में, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मतलब होता है, बाय विच वी अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज नोन एज द सेंटेंस. उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. Means in easy words we can say that a group of words which makes complete sense, a group of words which makes complete sense is called a sentence. So here some of the sentences are given, examples. Okay, so let's read it. First of all, Mr. Kumar is a teacher. Second, first means Mr. Kumar एक टीचर है. Second one, he teaches in a high school. वो एक हाई स्कूल में पढ़ाता है. द स्कूल हैज़ ओवर 1,000 pupils. मीन्स स्कूल में लगभग 1,000 बच्चे हैं. नेक्स्ट, फोर्थ वन, इट इज़ अ गुड स्कूल. यह एक अच्छा स्कूल है. नेक्स्ट वन इज मिस्टर कुमार्स स्टूडेंट लाइक हिम वेरी मच. मिस्टर कुमार के जो बच्चे हैं, वो छात्र हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें बहुत पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज Mrs. Kumar, who was also a teacher, works in a primary school. Mrs. Kumar, जो कि एक टीचर भी हैं, works in a primary school, एक प्राइमरी स्कूल में काम करती हैं. The children of that school wear uniform. उस स्कूल के जो बच्चे हैं, the children of that school wear uniforms. Means uniforms पहनते हैं. Now here in these sentences you can see, means these all are the sentences and they make a complete sense. They make a complete sense. That's why these are called the sentences. इन्हें हम sentence कहते हैं. Now let's see. A sentence will have a verb. हर सेंटेंस में, कोई भी आपका सेंटेंस है उसमें क्या होता है? वर्ब होता है. This is the main thing of a sentence, that there is a verb, there is always a verb in a sentence. कि सेंटेंस में हमेशा क्या होता है? एक मीन्स वर्ब ज़रूर होता है. ओके, विदाउट द वर्ब द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. वर्ब के बिना आपका जो सेंटेंस है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है. मीन्स इट इज़ नॉट कंप्लीट. Another thing of sentence is that the above written 7 sentences are made of 2 parts. This thing I would like to tell you that कि जो sentence होते हैं उनके 2 parts होते हैं. Like here the above written sentences, 7 sentences are made of 2 parts. Means ये जो sentences ऊपर दिए गए हैं 7 sentences, इनमें आपके 2 parts दिए गए हैं. There are 2 parts given in these sentences, and what are those 2 parts? Let's see. The first one is subject. जो आपका पहला पार्ट है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है. एंड द अनदर पार्ट इज प्रेडिकेट. दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर दीज 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विच मेक्स अ सेंटेंस, जिनके वजह से हम सेंटेंस बनाते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस. मीन्स वो प्रेडिकेट में ही आता है. सो लेट्स सी द सब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं. ओके,
First point, the subject is a noun or a pronoun with or without other words going with it. Subject is a noun or a pronoun with or without other words going with it. Subject क्या होता है आपका? Noun या फिर pronoun होता है, ठीक है, with और without other words going with it. इसका मतलब ये होता है कि subject आपका noun या फिर pronoun हो सकता है, ठीक है, noun या फिर pronoun होता है. With और without other words going with it का मतलब ये होता है कि उनके साथ और भी कुछ words हो सकते हैं. Like here in this example you can see मिस्टर कुमार्स स्टूडेंट. तो यहाँ मिस्टर कुमार की तो बात की जा रही है, मिस्टर कुमार के बच्चों की बात की जा रही है, मीन्स छात्रों की बात की जा रही है. ओके, सो हियर वी आर एडिंग अनदर सम अदर वर्ड्स आल्सो, लाइक इन दिस सेंटेंस मिसेस कुमार हु इज ऑल्सो अ टीचर. यहाँ मिसेस कुमार की बात की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जो मिसेस कुमार है वो क्या है, एक टीचर भी हैं. शी इज अ टीचर ऑल्सो. देन वी हैव टेकन अदर वर्ड्स, ओके, एंड दीज वर्ड्स आर गोइंग विद द सब्जेक्ट ओनली, मीन्स नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के साथ ही ये वर्ड्स भी जा रहे हैं. दैट्स वाई दिस होल इज नोन एज द सब्जेक्ट. इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे. सो लाइक दिस, द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल. द चिल्ड्रन मीन्स यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है, बट कहाँ के बच्चे ये भी बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के थ्रू, लाइक हियर विद और विदाउट अदर वर्ड्स गोइंग विद इट. तो ये वर्ड्स जो है वो इनके साथ ही, मीन्स चिल्ड्रन के साथ ही कंसीडर किए जा रहे हैं. दैट्स वाई दिस होल लाइन अप टू हियर, अप टू स्कूल इज योर सब्जेक्ट. वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. वी हैव एडेड सम अदर वर्ड्स with children and we are talking about these children only, that the children are of that school. किस स्कूल के हैं, उस स्कूल के बच्चों की बात की जा रही है कि वो क्या करते हैं, wear uniforms. So in this subject we have added some other words also that is being mentioned in this first point कि noun या फिर pronoun के साथ, या फिर नहीं, ऐसा नहीं भी होता है कि या तो उनके साथ कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं, either there are some other words also or not. okay, या फिर नहीं भी होते हैं, like here Mr. Kumar is only written over here and he, after that the school, it, ये सारे alone लिखे हुए हैं. but in these three we can see that some other words have also been joined. next आपका क्या है, second point, the encircled part are subjects in the above mentioned sentences. जो encircled part है, मीन्स जो सर्कल किया गया है part, okay, in these seven sentences, in the above mentioned sentences, okay, are the subject. वो हमारे क्या है, सब्जेक्ट है. okay, फर्स्ट आपका मिस्टर कुमार को सर्कल किया गया, दिस इज आवर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस. इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज आवर सब्जेक्ट. थर्ड वन द स्कूल. फोर्थ वन इट. फिफ्थ वन मिस्टर कुमार स्टूडेंट्स. Sixth one, Mrs. Kumar, who is also a teacher. This has been encircled, means this is a subject. The children of that school, means this is the subject. So, this was about the subject. Now, let's see that what are the predicates. अब हम देखते हैं कि predicate क्या होते हैं. So, here predicate, the predicate is the verb and the words. प्रेडिकेट जो होता है वो क्या होता है, वो वर्ब होता है आपका, वर्ब एंड द वर्ड्स. वर्ड्स से आपका इन द सेंस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, एडवर्ब, फ्रेज एक्सेट्रा दैट गो विथ इट. ओके, प्रेडिकेट आपका क्या होता है, वो वर्ब होता है. प्रेडिकेट में आपका वर्ब आ जाएगा. आफ्टर दैट द वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट. मीन्स प्रेडिकेट में आपका वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है. कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो देयर. कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, टू मेक देयर सेंस. ठीक है, उन्हें उनका सेंस सही करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, लाइक कुछ वर्ड्स. और एडवर्ब होते हैं, ओके, विच
विच टेल्स अबाउट द वर्ब, जो वर्ब के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। और कुछ फ्रेज भी होते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं। फ्रेजेस आर यूज इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। फ्रेज इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, फ्रेज खुद से कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इट्स सेंस इज नॉट कंप्लीट अलोन, इफ वी आर राइटिंग अ फ्रेज देन इट सेंस इज नॉट कंप्लीट, तो सेंटेंस में ही उसे राइट किया जाता है। आफ्टर दैट ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट एंड गो विद इट से मतलब ये है कि वो उसके अंदर ही होते हैं, ओके। इट इज गिवन इन दैट ओनली, मीन्स प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, ये सारी चीजें आती हैं। एंड इन द सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, या फिर उसके साथ नाउन और प्रोनाउन के साथ आपका कुछ वर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दैट नाउन और प्रोनाउन ओनली, ठीक है, जो कि उसके बारे में ही बता रहे होते हैं। सो वी कॉल देम द सब्जेक्ट, उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड इन द प्रेडिकेट ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब एंड फ्रेज, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द प्रेडिकेट विद द वर्ब, वर्ब के साथ होते हैं। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट्स इन द अबव मेंशन सेंटेंसेस, ठीक है, जो ऊपर ये जो सेंटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, इन दीज सेंटेंसेस द अंडरलाइन पार्ट इज योर प्रेडिकेट। सो मिस्टर कुमार द एनसर्कल्ड वन इज योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। इज अ टीचर, is a teacher is your predicate. So here in this sentence, one more thing I would like to tell you, that subject is that portion of a sentence, subject is that part of a sentence about the predicate about which we are talking, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इन ईजी वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एंड वट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा होता है, ठीक है, जो भी बताया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट। इन ईजी फॉर्म वी कैन से लाइक दिस। सो in the first one, Mr. Kumar is your subject, is a teacher, because we are talking about Mr. Kumar, that he is a teacher, then this Mr. Kumar is our subject because we are talking about him only. Next, in the second one, he teaches in the high school, वो पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है, in the high school. So we are talking about he के बारे में हम बात कर रहे हैं। So that's why this is our subject. And he, what he does, वो क्या करता है, teaches in the high school means उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करता है। with the help of the predicate we can easily know about this. Next, the third one is the school has over 1,000 pupils. अभी यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्कूल है वह उसमें क्या है, 1,000 पीपल, लगभग 1,000 pupils हैं उस स्कूल में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल at this time. That's why the school is our subject. And what we are telling about that school, the school, we are telling that there are, means the school has over 1,000 pupils, means इस स्कूल में 1,000 pupils हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज इट इज अ गुड स्कूल, ये स्कूल क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो ये इट इट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज अ गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल है, इज आवर प्रेडिकेट। नेक्स्ट वन, मिस्टर कुमार्स स्टूडेंट्स लाइक हिम वेरी मच, मिस्टर कुमार के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस्टर कुमार स्टूडेंट्स, ठीक है, इस सेंटेंस में मिस्टर कुमार के स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है। दैट्स वाई मिस्टर कुमार स्टूडेंट इज आवर सब्जेक्ट। एंड लाइक हिम वेरी मच इज योर प्रेडिकेट, क्योंकि मिस्टर कुमार के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या, उन्हें क्या पसंद है, मीन्स वो क्या करते हैं, लाइक हिम वेरी मच, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ओके। सो दिस विल बी आवर प्रेडिकेट, द अंडरलाइन पोर्शन। नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन, मिसेस कुमार हु इज ऑल्सो अ टीचर, मिसेस कुमार के बारे में बात की जा रही है जो कि एक टीचर है, ओके।
वर्क्स इन अ प्राइमरी स्कूल, वो कहाँ पे काम करती हैं, प्राइमरी स्कूल में काम करती हैं। अब मिसेस कुमार जो कि एक टीचर है, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक प्राइमरी स्कूल में काम करती हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मिसेस कुमार, ओके, जो कि एक टीचर हैं। और वो क्या करती हैं, दिस वी कम टू नो with the help of this predicate, okay, so this part is our predicate. Now in the next example, the children of that school wear uniforms, उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल, मीन्स उस स्कूल के बच्चों की बात की जा रही है। सो दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज आवर, this one is our predicate, means wear uniform. Likewise, we can say that these are the subject and predicates which are found in a sentence. And one more thing is there कि जो subject आपका होता है, okay, it is not only written in the beginning, वो एकदम से beginning में ही नहीं होता है. Sometimes it happens that we write the subject in the beginning or in the middle or एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट फिक्स दैट वी विल राइट द सब्जेक्ट इन वेरी बिगनिंग, हम सब्जेक्ट को एकदम से बिगनिंग में मीन्स स्टार्टिंग में राइट करेंगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इट कैन बी इन द मिडल ऑल्सो एंड इट कैन बी इन द बिगनिंग एंड इट कैन बी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वट एवर जो भी बोला जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। सो means a subject and predicate forms a sentence, means a group of word arranged in a certain order to make a complete sense, or we can say a sentence is a group of word which makes a complete sense, it is known as the sentence, ठीक है। So this was all about the sentence.